امن کا پیغام پاکستان، اسلام آباد کی سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی، امریکہ ایران جنگ رکوا دی، صدر ٹرمپ نے 2 ہفتوں کے لیے جنگ بندی کا اعلان کر دیا، خطہ تباہی سے بچ گیا، پاکستان ایران پر خوفناک حملے سے صرف 1 گھنٹہ پہلے صدر ٹرمپ کو راضی کرنے میں کامیاب ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ اور ایران کے وفود کو مذاکرات کے لیے 10 اپریل کو اسلام آباد مدعو کر لیا۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا، امریکہ اور ایران کے درمیان تنازعات کے حل کے لیے بامعنی مذاکرات کی ضرورت ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے پاکستان آنے کا امکان ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق جیریڈ کچنر اور سٹیو وٹکاف بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹویٹ میں کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے گفتگو ہوئی، انہوں نے درخواست کی کہ آج رات ایران میں تباہی کو روک دوں۔ جنگ بندی ایران کے آبنائے ہرمز کے مکمل تحفظ پر رضامندی سے مشروط ہے۔ یہ 2 طرفہ جنگ بندی ہوگی۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے جنگ بندی قبول کر لی، آبنائے ہرمز 15 روز کے لیے کھول دی گئی۔ سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کا جنگ بندی معاہدے کے بعد تمام فوجی یونٹس کو کارروائیاں روکنے کا حکم۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے جنگ بندی کے لیے انتھک محنت کی، مذاکرات کی بنیاد پر جنگ بندی قبول کرتے ہیں۔ اس جنگ کے جو شعلے 2 ہفتے کے لیے بجھ گئے ہیں اور اس کے ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کس طریقے سے انہوں نے امریکی لیڈرشپ کے ساتھ، ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ جو ان کے رابطے رہے، جس طرح بات ہوئی، ایرانی لیڈرشپ اور امریکی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے میری ریکویسٹ کو، میری درخواست کو پذیرائی بخشی۔ میں تمام خلیجی ممالک کا اور ہمارا عظیم ہمالیہ دوست چین، ان سب کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار۔ جنگ کے شعلے 2 ہفتوں کے لیے بجھ گئے ہیں۔ اسلام آباد مذاکرات کے ذریعے پائیدار امن کے حصول کی امید ہے۔ ہم سب کی اجتماعی کوششوں سے امن قائم ہوا۔ آج دنیا پاکستان کے گن گا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا اس جنگ میں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کی گئی، پاکستان نے ذمہ داری اور وقار کے ساتھ اپنا کردار ادا کیا۔ اللہ نے پاکستان کو وہ عزت دی جو عمر بھر کی تگودو سے بھی نہیں ملتی۔ فیلڈ مارشل کئی راتیں جاگتے رہے اور ایرانی قیادت کے ساتھ رابطے میں رہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت نے نیک نیت سے کام کیا۔ سیاسی قیادت ایک تھی، ہے اور رہے گی۔ وزیر اعظم کا امن کے لیے مذاکرات عمل کی حمایت پر دوست ممالک سے اظہار تشکر، کہا اسلام آباد مذاکرات کی جانب پیش رفت سے دوست ملکوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چین، سعودی عرب، ترکیہ، مصر اور قطر کی مکمل حمایت پر مشکور ہوں۔ سفارتی کوششوں کو موقع دینے پر دوست ممالک کا کردار سراہتے ہیں۔ ایرانی اور امریکی وفد میری دعوت پر جمعے کو پاکستان آ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا تہران کے ساتھ مل کر کام کرنے کا باضابطہ اعلان، کہا ایران اب یورینیم کی افزودگی نہیں کرے گا۔ ایران میں زیر زمین ایٹمی تنصیبات سے جوہری غبار صاف کیا جائے گا۔ ایران تعمیر نو کا عمل شروع کر سکتا ہے۔ ہم آبنائے ہرمز میں ہر قسم کی سپلائی اور حالات پر نظر رکھیں گے۔ مشرق وسطی میں سنہرے دور کا آغاز ہو گیا۔ خطے میں مثبت اقدامات اور معاشی مواقع پیدا ہوں گے۔ 15 میں سے متعدد نکات پر پہلے ہی اتفاق ہو چکا۔ تہران کے ساتھ ٹیرف اور پابندیوں میں نرمی پر بات چیت جاری ہے۔ مزید مثبت اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ ایران میں رجیم چینج ہو گئی جو ہمارا مقصد تھا۔ ٹرمپ نے خبردار کیا جو بھی ملک ایران کو فوجی ساز و سامان فراہم کرے گا اس پر امریکہ میں فروخت ہونے والی تمام اشیاء پر فوری طور پر 50% ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ کوئی رعایت یا استثناء حاصل نہیں ہوگا۔ ایران نے مذاکرات کے 10 نکاتی ایجنڈا بھجوا دیا۔ امریکہ کو جوہری ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی، ایران اور اس کے اتحادی گروپوں کے خلاف ہر قسم کی جارحیت کا مکمل خاتمہ کرنے کا مطالبہ، خطے سے امریکی افواج کا مکمل انخلاء اور علاقائی اڈوں سے ایران پر حملے پر پابندی لگانے کا مطالبہ، ایران کے قواعد کے تحت آبنائے ہرمز سے 2 ہفتوں تک محدود تعداد میں جہازوں کی آمد و رفت ہوگی، ایران پر عائد تمام بنیادی، ثانوی اور اقوام متحدہ کے پابندیوں کے خاتمے، ایران کے جنگی نقصانات کے ازالے کے لیے سرمایہ کاری اور مالیاتی فنڈ کے قیام کا بھی مطالبہ۔ امریکہ کو ایران کے جوہری مواد کی افزودگی کے حق کو تسلیم کرنا ہوگا۔ خطے میں تمام مزاحمتی گروپوں کے ساتھ عدم جارحیت کی پالیسی میں توسیع، ایران کو علاقائی ممالک کے ساتھ امن معاہدے پر مذاکرات اور تمام معاہدوں کی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے باضابطہ توثیق کا مطالبہ شامل۔
वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का टेलीफोनिक रब्ता। मसूद पज़ेश्कियान ने वफ्द की पाकिस्तान आमद की तस्दीक कर दी। खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में 45 मिनट गुफ्तगू जारी रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को जंगबंदी मुआहदे पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिते में कशीदगी कम करने और जंगबंदी कायम रखने की जरूरत पर जोर। कहा पाकिस्तान खिते में अमन, इस्तेकाम और मुज़ाकरात के फरोग के लिए सिफारतकारी की भरपूर हिमायत करता है। दोनों रहनुमाओं ने खिते में जारी कशीदगी को कम करने और बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान करीबी रवाबत और ताउन मजीद मजबूत बनाने का आज़म। ईरानी सदर ने एक्स पर पैगाम में कहा, जंगबंदी हमारे अजीम शहीद रहनुमा खामनाई के खून का समर है। कतर और सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक की जानिब से जंगबंदी का खैर मकदम और पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कतर और सऊदी अरब ने जंगबंदी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और ओमान ने भी जंगबंदी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ की। वेल्डन पाकिस्तान। अमरीका ईरान जंगबंदी मुआहदे पर आलमी बरादरी का खैर मकदम। पाकिस्तान का इजहार तशक्कुर। अंतोनियो गुतेरेस की पाकिस्तान की जंगबंदी कोशिशों की तारीफ। कहा इंसानी तकलीफ को कम करने के लिए दुश्मनी का खात्मा इंतहाई जरूरी है। फ्रीकैन आलमी कवानीन का एहतराम और जंगबंदी शराइत पर अमल करें। बरतानवी वजीर आजम के स्टारमर ने कहा, रात तय पाए जाने वाले जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम करता हूँ। ये जंगबंदी खिते और दुनिया के लिए राहत का बाइस बनेगी। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथनी अल्बनीज ने कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर खुशी है। उम्मीद है आर्जी जंगबंदी से मुस्तकिल जंगबंदी की राह हमवार होगी। तुर्किया की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि जंगबंदी को जमीनी सतह पर मुकम्मल तौर पर नाफिज करना निहायत जरूरी है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। मलेशिया की पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, जनूबी कोरिया, न्यूजीलैंड और जापान ने भी अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे को सराहा। आलमी मार्केट में कीमतें गिरने के बाद पेट्रोल और डीजल सस्ता होने का इम्कान। जराये का कहना है कि पेट्रोल 55 रुपए फी लीटर तक सस्ता हो सकता है, जबकि डीजल की कीमत में 95 से 100 रुपए कमी हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से मुतल्लिक हतमी फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। इसराइल का लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। 200 तैयारों के 10 मिनट में लेबनान के अंदर 100 अहदाफ पर हमले, 100 से ज्यादा अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी। इसराइल की जानिब से लेबनानी दारुलहुकूमत बैरूत समेत दीगर मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइल की जानिब से जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों के बाद लेबनानी हिजबुल्लाह का भी इसराइल पर हमला, सरहदी इलाकों को मिसाइलों से निशाना बनाया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू कहते हैं, लेबनान जंगबंदी में शामिल नहीं होगा, हमले जारी रहेंगे। ईरान का लेबनान को जंगबंदी में शामिल करने का मुतालबा। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है, लेबनान पर इसराइली हमले बंद ना हुए तो ईरान दोबारा जंग शुरू कर देगा और आबनाए हुर्मस भी नहीं खोली जाएगी। जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों पर वजीर आजम का सख्त रद्द अमल। कहा, जंगबंदी की चंद खिलाफ वर्जियों की इतलात हैं। खिलाफ वर्जियों से अमल मुतासिर होने का खदशा है। तयशुदा 2 हफ्ते जंगबंदी का एहतराम किया जाए। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तमाम फ्रीकैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और कशीदगी से गुरेज करें। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की फ्रीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की पुरजोर अपील। ईरान अमेरिका जंगबंदी, पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाया, कब हुआ? हुकूमती जराये के मुताबिक कल का दिन और रात पाकिस्तान की सिविल अस्करी क़यादत के लिए इंतहाई मुश्किल थी। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान ने अमेरिका, ईरान, सऊदीया और खलीज के दीगर ममालिक से कई बार राब्ते किए। चीन और रूस से दिन में 3 मरतबा राब्ते किए गए। ये राब्ते सिविल और अस्करी सतह पर किए गए। आला सतह राब्तों का पहला मरहला मंगल की सुबह से लेकर दिन 10 बजे तक जारी रहा। दूसरा मरहला शाम को 6 बजे से रात 9:30 तक जारी रहा। आखिरी और फैसला कुन राब्ते रात 11:45 पर शुरू हुए, जो सुबह 4 बजे तक जारी रहे। इन रवाबित में वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर खारजा इसाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर बराह रास्त मशगूल थे। वजारत खारजा और कौमी सलामती के इदारों के पसे पर्दा किरदारों ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया। इंतहाई जिम्मेदारी और राजदारी से सारा अमल मुकम्मल किया गया। आखिरकार कोशिशें बारावर साबित हुई।
जंग बंदी एक बर वक्त कदम मुज़ाकरात और इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। सदर आसिफ अली जरदारी का जंग बंदी का खैर मकदम, कहा दुनिया तबाही के दहाने पर थी, पाकिस्तान ने इंसानियत की खातिर खुलूस से नीयत से काम किया। पाकिस्तान को अमन के लिए दानिशमंदी और अज़्म के साथ क़यादत करने पर फख्र है। अमेरिका और ईरान की क़यादत तबाही के बजाय मुज़ाकरात का रास्ता चुनने पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सदर ने सऊदी अरब, चीन, तुर्किया, मिस्र और रूस की तामीरी किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और बाहमी एहतराम के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी सफारत खाने के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान की मुसलसल जिम्मेदाराना कोशिशों के लिए तामीरी किरदार, जंग बंदी, खिते में अमन के लिए मौसर कोशिशों को सराहा। अब्बास इराक़ची ने अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। अमेरिका ईरान जंग बंदी, हुकूमत का जुमे को यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। कौम से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं करने की अपील। काबीना इजलास में जंग बंदी पर अरकान को मिठाई खिलाई गई। काबीना अरकान का तालियां बजाकर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना अरकान को मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद दिया। खिते में कशीदगी कम करने के लिए राब्ते तेज। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार का कतर के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अल खलीफी से टेलीफोनिक रब्ता। खिते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान की जानिब से खिते में अमन और इस्तेहकाम की जारी सिफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग। कतर के वज़ीर मुमलिकत ने पाकिस्तान की तामीरी और मुस्बत किरदार को सराहा। कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान और कतर के दरमियान सिफारती राब्तों और ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा का चीनी हमनसब से भी राब्ता। जंग बंदी और पाकिस्तान में होने वाले मुजव्वज़ा मुज़ाकरात पर एतमाद में लिया। इसाक डार का यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काया कॉल्स से टेलीफोनिक राब्ता। खिते की ताज़ा सूरत हाल और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। काया कॉल्स ने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की, मुकम्मल हिमायत का इजहार। दुआ है अमरीकी जंग बंदी आलमी इस्तेहकाम की जानिब एक बामानी कदम हो। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का एक्स पर पैगाम, कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक बड़ी आलमी बुरान को टालने और ईरान अमरीकी जंग बंदी को महफूज बनाने के लिए गैर मामूली सिफारती कोशिशों पर दिल की गहराइयों से सराहता हूँ। सबको मुबारक हो, अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी। पाकिस्तान की बहुत बड़ी जंग रुकवाने में कामयाबी हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ईवान में इजहार ख्याल। पाकिस्तान को बतौर एतमाद सालिस के तौर पर पूरी दुनिया में तस्लीम किया गया। अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर मरकूज हैं। सिविल और अस्करी क़यादत पर मुश्तमिल हाइब्रिड मॉडल ने बेपनाह कामयाबियां समेटी। ताकत के मराकज मिलकर काम करें तो पाकिस्तान आलमी सतह पर कामयाबियां हासिल कर सकता है। नरेंद्र मोदी फारग, भारतीय मीडिया अब तड़पता रहेगा। भारत अभी तक अपनी इज्जत बहाल करने की कोशिश कर रहा है। बहैसियत कौम हमें दाखिली महाज मेशत दहशतगर्दी से निमटने की जरूरत है। उम्मीद है खिते में इस्तेहकाम और तरक्की का नया दौर शुरू होगा। अपोजिशन से एहतजाज के बजाय मुस्बत सियासत की तवक्को है। सेनेट इजलास में अमेरिका ईरान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी को खिराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, अमेरिका और ईरान ने हमारी कोशिशों को मद्देनजर रखते हुए मुज़ाकरात का इंतखाब किया। पाकिस्तान जंग के दहाने से अफ्रीकैन को वापस लाया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए सबको दुआ गो होना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा, पाकिस्तान ने आलम इस्लाम को दरपेश खतरे से बचाया। शैतान नेतन्याहू पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है। पूरी कौम और तमाम लीडरशिप मुबारकबाद की मुस्तहिक है। पीटीआई के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बतौर पाकिस्तानी मुझे इस जंग बंदी की बहुत खुशी है। सीज फायर को खराब करने के लिए इसराइल अभी भी लगा है। यह वक्त है कि रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान की क़यादत ने आलमी सतह पर बेहतरीन सिफारतकारी के जरिए अमन कायम किया। अमन किसी एक की नहीं, पूरी दुनिया की जीत है। आइंदा 2 हफ्ते इंतहाई अहमियत रखते हैं। हमें अपनी लीडरशिप की किरदार की तारीफ करनी पड़ेगी। मशरिक़ वस्ता में अहम और मुस्बत पेशरफ्त। कौमी असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने ईरान अमेरिका जंगबंदी पर पाकिस्तान के लिए तारीखी लम्हा करार दे दिया। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार एजाज सादी की ज़ेरे सदारत हुआ। स्पीकर ने ईरान अमेरिका जंगबंदी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि पाकिस्तान जंग के दहाने से अफ्रीकैन को वापस लाया है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए सबको दुआ गो होना चाहिए।
अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने कहा कि कोई पागल होगा जो आज की कामयाबी पर खुश ना हो। हम हुकूमत को गैर मशरूत सपोर्ट फराहम करेंगे। बैरिस्टर गौहर बोले, सीज फायर को वेलकम करते हैं और इस पेशरफ्त में जिसका भी किरदार है उसको सराहते हैं। उम्मीद है कि ये सीज फायर मुस्तकिल जंगबंदी में बदलेगी और खिते में अमन कायम होगा। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। बिलावल भुट्टो की तेहरान, वाशिंगटन और इस्लामाबाद में क़यादत की अनथक कोशिशों की तारीफ। कहा, ईरान और अमेरिका ने तबाही से हटकर मुकालमे को तरजीह दी। जंगबंदी खिते के लिए सांस लेने और जंग के साइज से बचने का मौका फराहम करती है। दुआ है ये महज वक्फा ना रहे बल्कि पायदार अमन की शुरुआत की। वजीर आजम पंजाब मरियम नवाज का जंगबंदी के लिए कामयाब कोशिशों पर शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल की काविशों की भी तारीफ। कहा, तारीख आलम में जब भी अमेरिका ईरान जंग के खात्मे का जिक्र होगा हर जगह पाकिस्तान ही पीस मेकर लिखा जाएगा। दुनिया को जंग से बचाने की पाकिस्तान की कामयाबी सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। आलमी और खिते की सियासत में पाकिस्तान ने बेमिसाल सिफारती तवाजुन का मुजाहिरा करके सबको हैरान कर दिया। दुनिया बहुत बड़ी तबाही से बच गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की खाजा पॉलिसी को फॉलो किया, जिसमें पाकिस्तान का नॉन अलाइंड रहना और किसी ब्लॉक का हिस्सा न बनना शामिल है। ईरान और सऊदी अरब के मामलात में पाकिस्तान ने मुतवाजन और उसूली मौक़िफ़ अपनाया, जिसे आलमी सतह पर सराहा गया। पाकिस्तान सबसे बेहतरीन। ईरान अमेरिका जंगबंदी पर विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम। कहा, दुनिया भर में पाकिस्तान के सालसी के किरदार की तारीफ की जा रही है। वजीर आजम, फील्ड मार्शल और वजारत खारजा मुतहरिक रहे। आज दुनिया की मार्केटों में मुस्बत रुझान है। सीज फायर का होना और फौरन अमल दरामद होना बहुत बड़ी कामयाबी है। मार्के हक की तरह आज पाकिस्तानी कौम के लिए फख्र का लम्हा है। अगले 48 घंटे बहुत अहम है। हमने अपना किरदार अदा करना है। बानी पीटीआई से बैरिस्टर सलमान सफदर की 50 मिनट तवील मुलाकात। पीटीआई का कल रावलपिंडी में होने वाला जलसा मुलतवी करने का ऐलान। पीटीआई की क़यादत ने मुशावरत के बाद हतमी फैसला कर लिया। पीटीआई ने इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के बायस जलसा मुलतवी करने का फैसला किया। इससे कबल इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को रावलपिंडी जलसे की इजाजत देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। इंतजामिया का कहना है कि लियाकत बाग की सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए हिफाजती वसाइल हुकूमती किफायतशारी पॉलिसी के तहत मुमकिन नहीं। शहर में दफा 144 भी नाफिज है। पाकिस्तान ने 1 अरब 43 करोड़ डॉलर की बैरूनी अदायगियां कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से बैरूनी अदायगियां 7 अप्रैल को की गई हैं। बैरूनी अदायगियां बैनुल अक़वामी बॉन्ड्स की मद में की गई। इन अदायगियों में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर बतौर असल ज़र अदा किए गए। बैरूनी अदायगियों में 14 करोड़ 30 लाख डॉलर सूद की मद में अदा किए गए। ये बैरूनी अदायगियां आज वाजिबुल अदा थीं। पाकिस्तान ने 1 रोज पहले ही अदायगियां कर दी।